हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारे अनुमान का जो क्लासिफिकेशन जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में करा था। दैट मीन्स हमने अनुमान का क्लासिफिकेशन तक कर लिया था। उसके बाद हमें आगे बढ़ना था, दैट इज़ अनुपलब्धि, उपमान और शब्दा के वर्ड पे। ठीक है, तो आज हम आगे की क्लास में हम ये सब कुछ कवर करेंगे। दैट मीन्स इंडियन लॉजिक का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आज का क्लास में कवर करेंगे। उससे पहले आई एडवाइज़ यू कि अगर आपने प्रीवियस लेसन्स ऑफ इंडियन लॉजिक नहीं देखे हैं, मैंने 4 to 5 लेसन्स ऑलरेडी इंडियन लॉजिक पे कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आई सजेस्ट यू कि अगर आपने बेसिक से कवर नहीं करा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन लॉजिक और एनी काइंड ऑफ टॉपिक फ्रॉम द बेसिक यू हैव टू कवर। सो आई सजेस्ट यू ऑल जस्ट टू लुक दैट वीडियोज़ एंड इसके बाद मतलब आप इसके बाद भी देख सकते हो, इसके पहले भी देख सकते हो, बट देखना उनको, क्योंकि उससे बेसिक क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, आई एम श्योर। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। यू कैन जस्ट go on telegram and search JRF classes. You will find our telegram channel in which we are providing the pdfs of this pdf of this or video lectures and MCQs will be provided by Preeti ma'am on the regular basis. And please do like, share and subscribe to our channel. उससे पहले हाँ ठीक है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। ठीक है, चलो वीडियो में चलते हैं अंदर। As you guys seen on your screen, we have covered so far the Indian logic basic, which is from Pramans, and then we have covered the type of Praman, which is very important, acceptance by the schools. Then we have the Nyay schools के according definitions. Then we have covered the perception part and type of perception. We have already covered extraordinary and ordinary stages of perception we have covered so far, and the requirements of perception, which is in the Indra Saniskarsan Avyapadesha. Then we have covered the inference part in our third and fourth videos, which is the second source of valid knowledge, differentiations between pratyaksha and inferences. And we have covered so far according to the Nyay school we have 5 members of cyclism. Then we have covered the classification of interference so far, the psychological classification interference, which is divided into 2 parts, which is Swarth and Prarth. And then we have covered the classification on the basis of nature of Vyapti. Vyapti is nothing but relatedness to some objects. Then we have covered we have divided the Vyapti in Anuman on the basis of Vyapti in 3 parts, which is Purvat, Sheshvat and Samya Darshana. Then we have the classification of Anuman according to Acharya Charak. According to Acharya Charak, we have divided the Anuman into 3 parts on the time series basis. In Hindi, that we have divided into Kal basis, Kal के क्रम के अनुसार. We have the first we Atita, then Aganta and the Vartaman Kalina. Then we have the classification on the basis of induction. That means we are inducing a theory from the general perception. ठीक है, from a general perception we are inducing a theory, right? Then we have classified this induction on in 3 parts, that is Keval Anyay inference, that is related to the positive inference. Then we have the Keval Anya Tereki inference, that is related to the negative type of inference. And then we have the third and the last, which is Anya Vetarki inference, positive and negative combined. Then we have the clubbing the positive and negative effect of inference in a statement. So far so good. We have covered these things which I am just mentioned you all. So now we are going to do the comparison part, the third valid source of knowledge, which is comparison. That means उपमान. ठीक है, that means उपमान, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, भाई कैसा लगा, ऐसा लगा. दैट मीन्स हमने उदाहरण दिया. आप उनकी तरह अच्छा पढ़ाती हो, दैट मीन्स आप किसी की तरह, दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग मी टू समवन एल्स. ठीक है, आप उसकी आपकी आदतें उसकी तरह हैं. दैट मीन्स आई एम कंपेयरिंग यू टू माई प्रीवियस लर्नर. इफ आई एम सेइंग दैट यू आर टू माई सिस्टर एज माई सिस्टर, दैट मीन्स आई एम कंपेयरिंग यू विद माई सिस्टर. दैट मीन्स कंपेरिजन of something to someone, or something or someone to someone, something to something. That means we are doing the comparison between 2 things just to clarify more ऑब्जेक्टिव बेसिस पर्पजेस. ठीक है, चलो
उसके बाद देखते हैं अब इसका मीनिंग क्या है और क्या क्या ये बोलता है, ठीक है। चलो देखते हैं। उपमान दैट मीन्स सिमिलैरिटी, अप मीन्स सिमिलैरिटी, ये हम हिंदी से कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन का हम नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं उपमान, दैट मीन्स उप मतलब सिमिलैरिटी, हमने किसी चीज़ को उपमा दे दी है, सादृश्य, इसे और अगर हिंदी में बोलो तो सादृश्यता हमने दे दी है। मान दैट मीन्स नॉलेज, कॉग्निशन, उसके कंपैरिजन से हमें ये पता चल रहा है कि हम किसकी तरह कंपेयर कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि ऐसे मैं कॉलेज के कंपैरिजन में बोलूँ दैट एमआईटी यूनिवर्सिटी समवेयर टू सम एक्सटेंट इज maintaining their quality with in comparison to IIMs or IITs. That means I am comparing MET with IIMs. That means मैं दोनों को नॉलेज दे रही हूँ कि हाँ अगर IIM इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं दैट मीन्स MET का क्वालिटी भी टू सम एक्सटेंट उस लेवल का है। दैट मीन्स आई एम कंपेयरिंग बिटवीन टू कॉलेजेस, ठीक है। हेंस उपमान नॉलेज ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, नॉलेज ऑफ सिमिलैरिटी यानी कि दो चीज़ों की सिमिलैरिटी है। क्वालिटी ऑफ एमआईटी यूनिवर्सिटी मुंबई एंड द क्वालिटी ऑफ IIMs आर आई एम कंपेयरिंग, इज दिस जस्ट अ एग्जाम्पल, आई एम कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ बोथ यूनिवर्सिटीज और बोथ कैंपसेस, ठीक है। It has been defined as the knowledge of relation between a person and its denotation, right? हम किस चीज़ के लिए knowledge again कर रहे हैं, compare कर रहे हैं with the between a person and its denotation. अनुमान और उपमान में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। Now we are differentiating the both. अनुमान क्या होता है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल ट्रूथ होता है। अनुमान क्या? यूनिवर्सली एप्लीकेबल, क्योंकि ये क्या है? इनडायरेक्ट बट इमीडिएट नॉलेज है, इंडिमीडिएट नॉलेज है, ठीक है। बेस्ड ऑन एनालॉजी मे एंड मे नॉट बी बेस्ड ऑन द ये क्या है? एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है? व्हेन वी आर कंपेयरिंग समवन टू समवन, ठीक है, और समथिंग टू समवन और समथिंग टू समथिंग, ठीक है। दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स, ओके। तो क्या है? इट मे बी बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल ट्रूथ और बेस्ड ऑन आवर थॉट्स, दैट मीन्स इफ इट इज बेस्ड ऑन आवर थॉट दैट मीन्स इट्स नॉट द यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ट्रूथ, क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस में डिफर पर्सन टू पर्सन। थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस वेरी पर्सन टू पर्सन, डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट उपमान इज नॉट अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल ट्रूथ बट अनुमान इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल ट्रूथ। सो if someone asks you that what is the universally applicable truth between anuman and upman, then you can take the answer that anuman is the universally applicable truth by giving the explanation that upman is not an universally applicable truth because it may based on the someone thinking process and thought process may differ person to person and vary person to person, okay. This is the third source of valid knowledge. I hope आपको फर्स्ट और सेकेंड नॉलेज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज पता होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में करवाया हुआ है। नाउ वी आर कमिंग बैक टू सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन, यानी कि हम किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं और उसे क्या बोलते हैं। जैसे हमने बताया था ना, हेतु को क्या बोलते हैं, देन वी हैव कवर्ड द लिंगी एंड द लिंगा, द ऑब्जेक्ट एंड द रीज़न एंड द सब्जेक्ट, वो सब। तो जैसे ही उनमें हमने कवर किया था वैसे ही हम इनमें भी कवर करेंगे। सो हमारे पास क्या है देख लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन दैट मीन्स उपमेयम यानी कि एस से यम आ रहा है, यम से हमने सब्जेक्ट को कवर करा। एस मीन्स सब्जेक्ट, दैट मीन्स यम। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन उपयनम, यहाँ से यम पे एस है और नम पे ऑब्जेक्ट है, तो ओ नम और एस यम। एट्रीब्यूट, जिस चीज़ को हम कंपेयर करें, फूलों सी नाजुक हो, दैट मीन्स नाजुक हो फूलों सी, ठीक है। किसको? चांद को कंपेयर किया लड़की से या जिसको भी समथिंग वी आर कंपेयरिंग, तो बोथ और एट्रीब्यूट जो हम दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं सामान्य, ठीक है। तो उपयम दैट मीन्स सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन, उपयनम नम, ओके, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना। उपमेयम दैट मीन्स सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन। उपमनम, ठीक है, उपमनम दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन। एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड द सामान्य, ठीक है। हर फेस, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, yes, here is the example.
हर फेस इज़ लाइक द मून इन चार्मिंगनेस, ठीक है। तो हर फेस, ये क्या हुआ, सामान्यम हुआ। दैट मीन्स क्या है, उसका फेस, फेस क्या है, सब्जेक्ट है। किसकी तुलना कर रहे हैं, उसके फेस की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके फेस की तुलना किससे कर रहे हैं, ठीक है। मैं उनके जैसा अच्छा पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। उनके जैसा वो हो गए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसको कंपेयर कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जिससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जिसको कंपेयर कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट जिससे कंपेयर कर रहे हैं। हर फेस इज लाइक द मून, यानी कि एस यम, दैट मीन्स सब्जेक्ट, ओपनियम। उसके बाद मून, ओ नम, दैट मीन्स ओ ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद उपनियम हमने बोला कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं किस चीज़ को, व्हाट इज द एट्रीब्यूट, दैट मीन्स हर फेस इज लाइक द मून इन चार्मिंगनेस, यानी कि चार्मिंगनेस क्या हो गया, सामान्य लक्षण हो गए हमारे, एट्रीब्यूट्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गई, कि हम इस चीज़ को कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि हर फेस इज लाइक द मून इन चार्मिंगनेस। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, तो लड़की क्या हो गई, सब्जेक्ट, और गुलाब और वो सब पंखुड़ी और वो सब हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। So far we have covered the comparison and the basic revision of what we have done so far. Okay, आई होप आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ रिवाइज कर लेना, क्योंकि वैलिड ये इंडियन लॉजिक ऐसा है जैसे हम फटाफट से मिक्स वेज में भी बन जाता है और हम भूल भी जाते हैं। सो इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ वी विल कवर द वर्ड विच इज़ द फोर्थ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड what we have covered in the what we will cover the classification of shabda, and the fifth valid source of knowledge which is अर्थपति। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वन मोर दैट yes, that if you guys are not yet subscribed to my channel, please do subscribe to our channel and like the video if you guys are liking my videos, as I am uploading the video as per your demands only, ठीक है। You can follow us on JRF classes on Telegram. You can also follow us on Instagram, which is Aurora Classes Kota, and you can mail your queries on our mail ID, which is Aurora Classes 05. Thank you so much. We'll meet you in the next video. Thank you so much, and keep sharing the videos.